Hello everyone, welcome back to IT Tools for Business. I am Assistant Professor Zinkal Patel from Raffle BCA College. Today I am going to start another unit, that is unit number 3, Spreadsheet Package. Now spreadsheet package means we are going to start MS Office Excel version 2007, right? Now today in this video I am going to cover basic of Excel applications, like that is what is worksheet, what is workbook, what is cell, what is cell address, and what is formula bar. Now first of all, let me start MS Office Excel 2007. Now for that, let me go to Start menu. In that, search Excel 2007. Just click on that app, Microsoft Office Excel 2007. So here Excel is open. So in Excel, this is a spreadsheet, and this sheet is often called as worksheet, right? So here a sheet is a single page. This one is a single page that contain its own collection of cell to help you to organize your data in tabular form. Now we can add more sheet like here. Now in this book, like 3 spreadsheet is displayed, sheet 1, sheet 2, sheet 3. You can rename this sheet, like I can write ABC, right? Now if I want to add more sheet like sheet 4, then just click on this insert worksheet button, or you can press shift F11. So sheet 4 is added. And if you want to delete this sheet, then just click on sheet 3 को delete करना है तो उस पर click करो and delete, right? Fine. Hope you understand this. So here we can say that this collection of this sheet is called as workbook, and here so workbook is a file that contains one or more worksheet to help your organize data, to help you to organize data, right? So here 3 sheets से क्या बनता है? 1 book. तो यहाँ पे book name क्या है? book 1, right? By default it store as book 1. So let me save it by my own name, like एक्सेल बुक को मैंने सेव किया है. बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो रहा है, लाइक आई राइट abc.xls. ठीक है, ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है. डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस, आई वांट टू रिप्लेस इट. सो दिस फाइल इज नाउ स्टोर एज abc excel sheet, right? Hope you understand this. वर्कबुक 1 का नाम क्या है? बुक 1 का नाम क्या है? ABC. So now as I said that worksheet is the collection of row and column, like here rows and columns are displayed, like here जो one box है, one box is called as cell. ठीक है, बहुत सारे कॉलम और रो मिला के सेल बनते हैं, और collection of cell is known as sheet. Now how to identify this cell? Now in this spreadsheet, rows are identified by numbers, like this one is 3rd row, 6th row, 8th row, etc. And columns are identified by these letters, like A, B, C, D, E, F, G column, right? Hope you understand this. Now first of all, how to identify, how to show the maximum column? Just click on control and end button. ठीक है, सो एंड कॉलम पे हम पहुंच जाएंगे, और एंड की कॉलम नेम है XFD.
नाउ एंड रो पे पहुंचना है तो जस्ट प्रेस ऑन कंट्रोल एंड पेज डाउन की. सो लास्ट रो पे हम पहुंच जाएंगे. दैट इज लास्ट रो इज आइडेंटिफाई बाय 10,48,576 रो, राइट. एंड कॉलम कौन सी है? XFD, राइट. अब फर्स्ट सेल पे हमें जाना है तो जस्ट प्रेस कंट्रोल होम बटन, राइट. सो हियर हम फर्स्ट सेल पे आ गए. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई बाय दिस? हाउ डू आइडेंटिफाई दिस फर्स्ट सेल? दिस इज आइडेंटिफाई बाय सेल एड्रेस, right. Like cell address means first of all column name, that is A, and row name, that is 1. So here see, यहाँ पे name box में नाम क्या है सेल का? A1. Now if I click on this one, then this cell is identified as C4. सेल एड्रेस क्या होगा? C4. यहाँ पे नेम बॉक्स में उसका एड्रेस दिखेगा, ठीक है. इफ आई प्रेस ऑन दिस row and column, this cell, then this cell is known as E10, right. Now let me write something. For example, I want to write some student data. So first start with roll number, then second column होगी name, then marks लिखने हैं तो subject 1 के mark, then subject 2 के mark and total, right. नाउ 1 to 10 रोल नंबर लिखने हैं. सो 1 2 ऐसे मैन्युअली लिखने जाएंगे. सो इट विल टेक टाइम. सो ईजिएस्ट मैथड है fill handle. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय fill handle? लेट मी शो यू. लाइक 1 और 2 मैंने लिखा है, ठीक है. फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 1 and 2 लिखा है. जस्ट सिलेक्ट बोथ द नंबर. हम एक्सेल सीट में नेविगेशन के लिए एरो की यूज़ कर सकते हैं. लाइक राइट जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए, अप डाउन अप, ठीक है. एरो की यूज़ कर सकते हो. नाउ शिफ्ट प्रेस करके एरो की से हम डेटा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ हमने यहाँ पे 2 रो सिलेक्ट किए, 1 and 2. नाउ यहाँ पे हम कर्सर लेके जाएंगे तो प्लस साइन आएगी. जैसे ही प्लस साइन आएगी, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके उसको ड्रैग करना है. देखो नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है. कहाँ तक ड्रैग करना है? 10 तक. सो ऑटोमेटिकली 1 to 10 जो है वो फिल हो जाएगा. सो इट इज़ कॉल्ड एज fill handle, right. What it called? Fill handle. Now let me write name, okay, like subject 1 के marks, then subject 2 के marks, fine. Now if I want to add another column, like just टोटल के आगे हमें और एक कॉलम सब्जेक्ट 3 ऐड करनी है. जस्ट क्लिक ऑन कॉलम, देन राइट क्लिक ऑन दैट कॉलम एंड प्रेस इंसर्ट. देन सी ऑटोमेटिकली 1 कॉलम इज इंसर्ट. लेट मी नेम इट सब्जेक्ट 3. टाइटल दे दिया सब्जेक्ट 3. बट इफ आई वांट टू डिलीट दैट कॉलम, देन अगेन जस्ट सिलेक्ट दैट कॉलम, राइट क्लिक ऑन दैट कॉलम एंड डिलीट इट, राइट. सो उसे डिलीट हो जाएगा. फाइन. नाउ इफ आई वांट टू डिलीट दिस 7th रोल नंबर, देन सिलेक्ट दिस कॉलम, सिलेक्ट दिस रो, राइट क्लिक ऑन दैट एंड प्रेस डिलीट, ओके. एंड 6 and 8 रोल नंबर के बीच में मुझे रो ऐड करनी है, तो 8 रो को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक ऑन दैट एंड प्रेस इंसर्ट. तो ऑटोमेटिकली 1 रो जो है इन बिटवीन 6 and 8 इंसर्ट हो जाती है. सो लेट मी नेम इट एज 7. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द बेसिक ऑफ एक्सेल. क्लियर? फाइन. नाउ सम, लाइक ऑटो सम. सी यहाँ पे ऑटो सम बटन है, ठीक है.
सो अगर इसको क्लिक करेंगे तो इट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सिंपल कैलकुलेशन सच एज एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। नाउ ऑटो सम का यूज़ क्या होगा, लाइक हमें सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का टोटल करना है, ठीक है, ABC स्टूडेंट का। तो जस्ट सेलेक्ट बोथ द सेल जिसका हमें सम करना है, जस्ट क्लिक ऑन ऑटो सम, तो टोटल में उसका ऑटोमेटिकली सम हो गया, ठीक है। जस्ट सिलेक्ट ऑन ऑटो सम, राइट। ना वही फॉर्मूला हमें सभी कॉलम में यूज़ करनी है, सभी रो का सम करना है। तो जस्ट सिलेक्ट वन सेल जिसमें ऑटो सम अप्लाई किया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑटो सम का क्या आया, लाइक सम इक्वल टू, सी कोई भी फॉर्मूला अगर हम लिखे दैट स्टार्ट विथ इक्वल टू, देन इक्वल टू फंक्शन नेम क्या आया, SUM, एंड सम किसका करना है, सेल एड्रेस C3 एंड D3, तो दिस वन इज C3 एंड दिस वन इज D3, और यहाँ पे क्या ऐड हो गया, उसका सम ऐड हो गया, ठीक है। सेम अगर हमें नेक्स्ट रो में अप्लाई करना है तो हमें उसको एंड तक ड्रैग करना होगा। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉलम नंबर इंक्रीज होगा एंड रो नंबर भी इंक्रीज होगा और ऑटोमेटिकली सम डिस्प्ले होगा, right? Now let me delete this number, no need to write this number. Now if I want to add this number here and this number here, then just select that column and press auto sum. Select that column जितने भी नंबर का हमें सम करना है एंड देन ऑटो सम, राइट। सो हम इजीली ऑटो सम भी कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस, फाइन। नाउ ये टेबल को अगर हमें फॉर्मेट करना है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हम बॉर्डर है, लाइक थिक बॉर्डर जो राउंड में होगी, ऑल बॉर्डर मतलब सभी सेल में बॉर्डर हो जाएगी, ठीक है। बॉर्डर का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक लाइन कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड कलर की लाइन चाहिए तो ये रेड कलर में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, फाइन। मोर बॉर्डर्स चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, लाइक अगर हमें डबल, लाइक ये डबल साइडेड जो बॉर्डर है वो हमें इस तरफ चाहिए, बॉक्स पूरे टेबल के राउंड साइड हमें डबल साइड बॉर्डर चाहिए तो वो भी हो सकती है, लाइक दिस, ये डबल बॉर्डर आ गई, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही फॉर्मेट कर सकते हैं जैसे कि हम एज यूजुअल वर्ड डॉक्यूमेंट में भी फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस then you can tell me. Thank you.